اگر آپ پاکستان کے سب سے خوبصورت اور قدرتی مناظر سے بھرپور علاقوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آزاد کشمیر یقیناً آپ کی ٹریول لسٹ میں ہونا چاہیے۔ یہ خطہ بلند پہاڑوں، سرسبز وادیوں، صاف جھیلوں، خوبصورت آبشاروں اور بہتے دریاؤں سے سجا ہوا ہے۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ قدرتی حسن آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور دیگر سیاحتی مقامات کے مقابلے میں یہاں سفر نسبتاً کم خرچ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو کشمیر کے 10 ایسے خوبصورت مقامات کی سیر کروائیں گے جہاں پہنچ کر واقعی محسوس ہوتا ہے کہ جنت صرف آسمانوں میں نہیں بلکہ زمین پر بھی موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ہر مقام کے بارے میں بتائیں گے: اسلام آباد سے فاصلہ، سطح سمندر سے بلندی، موسم اور درجہ حرارت، اور وہاں موجود ہوٹلز اور ریسٹورانٹس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کشمیر کے خوبصورت سفر کو۔ بنجوسا لیک راولا کوٹ کے قریب واقع ایک خوبصورت مصنوعی جھیل ہے جو گھنے سرسبز جنگلات کے درمیان موجود ہے۔ یہ مقام اپنی خاموش فضا، ٹھنڈی ہوا اور قدرتی حسن کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک بہترین پکنک پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 135 کلومیٹر ہے اور یہاں پہنچنے میں تقریباً 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ یہ جھیل سطح سمندر سے تقریباً 6500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 15 سے 25 ڈگری کے درمیان رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت 0 کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے اور کبھی کبھار برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں کئی ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹورانٹس موجود ہیں۔ ہوٹلز کے چارجز عموماً 4000 روپے سے 25,000 روپے پر نائٹ کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو راولا کوٹ یا کھائی گلا میں نسبتاً مناسب قیمت والے ہوٹلز حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹولی پیر ٹاپ آزاد کشمیر کی مشہور ہل ٹاپس میں سے ایک ہے جو کہ ضلع راولا کوٹ میں واقع ہے۔ سرسبز گھاس سے ڈھکی یہ چوٹی چاروں طرف پھیلی ہوئی وادیوں اور پہاڑوں کا انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ اسلام آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 160 کلومیٹر ہے، جبکہ راولا کوٹ سے صرف 30 کلومیٹر ہے۔ ٹولی پیر کے بیس کیمپ تک گاڑی بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کی ہائیک کے بعد آپ ٹاپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مقام سطح سمندر سے 8800 فٹ بلند ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 10 سے 20 ڈگری رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں برف باری بھی ہوتی ہے۔ یہاں چند ریسٹورانٹس اور چھوٹے ہوٹلز موجود ہیں، تاہم زیادہ تر سیاح رہائش کے لیے راولا کوٹ یا کھائی گلا کو ترجیح دیتے ہیں۔ لسڈنہ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں واقع ایک خوبصورت مگر نسبتاً کم دریافت شدہ وادی ہے۔ سرسبز پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان واقع یہ مقام اپنی خاموش فضا اور ٹھنڈی آب و ہوا کی وجہ سے سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ اسلام آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 170 کلومیٹر ہے، جبکہ ٹولی پیر ٹاپ سے یہ مقام صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ٹولی پیر اور لسڈنہ کے درمیان نئی تعمیر شدہ سڑک اس سفر کو مزید آسان اور دلکش بنا دیتی ہے۔ یہ مقام سطح سمندر سے تقریباً 8600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 12 سے 22 ڈگری رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں اچھی خاصی برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کشمیر ٹورزم کا گیسٹ ہاؤس، چند جنگل لاجز اور چھوٹے ہوٹلز موجود ہیں، جبکہ کھانے کے لیے سادہ ریسٹورانٹس بھی مل جاتے ہیں۔ ہوٹلز کے چارجز عموماً 3000 سے 8000 روپے پر نائٹ کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ایک ہی سفر میں بنجوسا لیک،
टूली पीर और लसडन्ना तीनों मुकामात देख सकते हैं और यहाँ से बरास्ता बाग गंगा चोटी भी जा सकते हैं। गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की एक बुलंद और खूबसूरत चोटी है जो अपने दिलकश कुदरती मनाजर की वजह से सयाहों में काफ़ी मकबूल है। गंगा चोटी ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए भी एक पसंदीदा मुकाम है। यहाँ पहुंचकर ठंडी हवा, खामोश माहौल और बादलों से ढके पहाड़ इंसान को फितरत के बहुत करीब होने का एहसास दिलाते हैं। इस्लामाबाद से गंगा चोटी का फासला तकरीबन 200 किलोमीटर है, जबकि बाग से इसका फासला तकरीबन 21 किलोमीटर है। गंगा चोटी जाने के लिए पहले सुदन गली पहुंचना होता है, जहां से बेस कैंप तक हर तरह की गाड़ी बासानी जा सकती है। ये चोटी सतह समंदर से तकरीबन 9,990 फीट बुलंद है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 18 डिग्री रहता है, जबकि सर्दियों में यहाँ भरपूर बर्फबारी होती है। सुदन गली में काफ़ी होटल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जिनके चार्जेस 4500 से 15,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से हो सकते हैं। गंगा चोटी पर अगर रात गुजारना चाहें तो काफ़ी बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने कैंपिंग का इंतज़ाम कर रखा है, मगर यहाँ फैमिलीज़ के लिए रात गुजारना मुनासिब नहीं। अलबत्ता वहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में ढाबे मौजूद होते हैं। केरन वादी नीलम का एक नहायत खूबसूरत गांव है जो दरियाए नीलम के किनारे वाक़े है। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ दरिया इस जगह की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। केरन की खास बात यह है कि दरिया की दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय कश्मीर का गांव भी साफ नजर आता है, जो इस मुकाम को मजीद दिलचस्प बना देता है। इस्लामाबाद से केरन का फासला तकरीबन 250 किलोमीटर है, जबकि मुजफ्फराबाद से 94 किलोमीटर है। रास्ते में आपका इस्तकबाल जबार वाटरफॉल करती है और उसके बाद धानी वाटरफॉल जैसे खूबसूरत मुकामात भी आते हैं, जो सफर को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। यह मुकाम सतह समंदर से तकरीबन 5,000 फीट बुलंद है। गर्मियों में दर्जा हरारत 18 से 30 डिग्री रहता है, जबकि सर्दियों में काफी ठंड होती है। यहाँ दरिया के किनारे रिजॉर्ट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। होटल्स के चार्जेस अमूमन 4,000 से 30,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से हो सकते हैं। केरन नीलम वैली में फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। अपर नीलम दरअसल केरन के ऊपर पहाड़ी पर वाक़े एक कदीम और पुरसुकून गांव है। यह गांव बुलंदी पर वाक़े होने की वजह से यहां से नीचे बहते हुए दरियाए नीलम, केरन गांव और इर्द गिर्द के सरसब्ज पहाड़ों का दिलकश मंजर पेश करता है। केरन से यहां पहुंचने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती है। इस्लामाबाद से केरन का फासला तकरीबन 250 किलोमीटर है। यह मुकाम सतह समंदर से तकरीबन 5,900 फीट बुलंद है। गर्मियों में दर्जा हरारत 15 से 28 डिग्री रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है। यहाँ होटल्स, गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहाँ मुकामी कश्मीरी खाने भी मिल जाते हैं। यहाँ पर होटल्स के चार्जेस 3,000 रुपये पर नाइट से लेकर 35,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से हो सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर लग्जरी होटल्स भी कायम हो चुके हैं और कश्मीर टूरिज्म का गेस्ट हाउस भी मौजूद है। अगर आप रत्ती गली या बेबून टॉप जाना चाहते हैं तो अपर नीलम क़याम के लिए बेहतरीन जगह है। शारदा वादी नीलम का एक अहम तारीखी और सियाहती मुकाम है जो दरियाए नीलम के किनारे वाक़ है। यह मुकाम खास तौर पर कदीम शारदा यूनिवर्सिटी के खंडरात की वजह से मशहूर है, जो कभी बरे सगीर का एक बड़ा इल्मी मरकज समझी जाती थी। इस्लामाबाद से इसका फासला तकरीबन 280 किलोमीटर है, जबकि मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर। शारदा सतह समंदर से तकरीबन 6500 फीट बुलंद है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 16 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी भी होती है। यहाँ काफी तादाद में होटल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। होटल्स के चार्जेस 3000 से 15000 रुपये पर नाइट के हिसाब से हो सकते हैं। दरिया नीलम का पार्ट यहाँ काफी चौड़ा हो जाता है और पानी की रफ्तार निस्बतन सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से बोटिंग और वाटर एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। अड़ंगकेल को अक्सर कश्मीर का जन्नत नजीर गांव कहा जाता है। यह खूबसूरत गांव केल के ऊपर एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़े है। पहले केल तक गाड़ी से पहुंचा जाता है, फिर डोली के जरिए ऊपर जाकर तकरीबन 40 मिनट्स की हाइक के बाद अड़ंगकेल पहुंचा जा सकता है। अड़ंगकेल पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप बादलों के दरमियान खड़े हों। चारों तरफ सरसब्ज मैदान, बुलंद बाला पहाड़ और खामोश व पुरसुकून माहौल इस जगह को वाकई जन्नत नजीर बना देते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ के सब्जाजार और घने जंगलात अड़ंगकेल की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इस्लामाबाद से यहाँ का फासला तकरीबन 315 किलोमीटर है। ये मुकाम सतह समंदर से तकरीबन 7874 फीट बुलंद है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 15 से 30 डिग्री रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है। यहाँ लकड़ी के कॉटेजेस और गेस्ट हाउसेस मौजूद हैं, जिनके चार्जेस 6000 से 35000 रुपये पर नाइट तक हो सकते हैं। तौबट वादी नीलम का आखिरी और नहायत खूबसूरत गांव है। यह मुकाम कुदरती हुस्न से माला माल है और अपनी पुरसुकून फिजा, सरसब्ज मैदानों और दिलकश पहाड़ी मनाजर की वजह से सियाहों को बेहद मुतासर करता है। यह शारदा से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस्लामाबाद से इसका फासला तकरीबन 350 किलोमीटर है। केल से आगे सफर के लिए अमूमन 4x4 जीप इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि रास्ता कदरे दुश्वार है। यह मुकाम सतह समंदर से तकरीबन 7217 फीट बुलंद है। गर्मियों में तौबट का दर्जा हरारत 10 से 20 डिग्री तक रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ लकड़ी के बने कई गेस्ट हाउसेस और कॉटेजेस मौजूद हैं, जिनके चार्जेस 4000 से 25000 रुपये पर नाइट तक हो सकते हैं। तौबट बाला तौबट के करीब एक बुलंद और सरसब्ज इलाका है।
जो अपनी खूबसूरत चरागाहों, बहते झरनों, जंगलात और पुरसुकून माहौल की वजह से जाना जाता है। ये मुकाम ज़्यादातर फितरत से मोहब्बत करने वालों और हाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए कशिश रखता है। तौबट से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट्स की पैदल वॉक करनी पड़ती है। ये मुकाम सतह समंदर से तकरीबन 8,500 फीट बुलंद है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 20 डिग्री तक रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है और रास्ता तकरीबन बंद रहता है। सियाहत अभी यहाँ ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं, इसलिए यहाँ चंद सादा गेस्ट हाउसेस ही मौजूद हैं, जिनके चार्जेस 1500 से 4,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से हो सकते हैं। ये जगह फितरत के करीब पुरसुकून वक्त गुजारने वालों के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। अगर आप फितरत, पहाड़ों और पुरसुकून वादियों से मोहब्बत करते हैं तो आज़ाद कश्मीर के ये मुकामात यकीनन आपकी ट्रैवल लिस्ट में होने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको पाकिस्तान के मज़ीद खूबसूरत मुकामात दिखाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।